चलिए. Good evening, everyone. I think it's audible to all of you. Okay. So let me just hear first कि आप लोगों का एग्जाम कैसा गया. Please turn on your mic and say. Vidhi, Raj. सर एक्चुअली मैं तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में देने वाला हूँ। मैंने तो अभी ऐसे ही पहले ही ज्वाइन कर लिया है। Okay, आप एसेट कब देंगे? मई 2025। Okay, okay, okay. अर्नव. Sir, can you please repeat your question maybe? मैं पूछा एग्जाम कैसा गया. How was your exam? So the exam was good. I attempted most of these questions and it was a good experience overall. Okay. So how did you find जो live classes? Did you attended the live classes? Sir, मैं live classes तो attend नहीं कर पाती थी because मेरे college time से match नहीं होता था. I would do the recorded course and I joined like in February का starting. तो So it was good. did the dashboard and all helped you a lot? Yes sir, मेरा ऐसा था कि I was preparing for CM1 already to appear from IFOA. तो मैंने अपना बोर्ड चेंज किया था प्रवीण सर से बात करके. तो it was pretty smooth for me because I knew how to navigate around through the coaching का videos वगैरह सब. And the classes were also pretty good enough जितना मैं कर पाई. And the syllabus it was pretty normal for me because मैं CM1 कर रही थी तो मेरे को difficult नहीं लग रहा था. And 12 का syllabus था तो it was kind of easy. So अभी when you are planning to give your CM1? सो आई वाज प्लानिंग क्योंकि मैं प्रिपरेशन एटलीस्ट मेरे को मोर देन अ ईयर हो गया था. मेरा बहुत हेजी था, इधर उधर करके प्रिपेयर हो रहा था एंड आई वाज नॉट एबल टू फिक्स like time when to give. So right now if I have done it, I want to appear in May along with CB1. Okay. So you have enrolled for both the courses? So coaching में तो CM1 but I am planning to enroll for CB1 as well. Okay, So I okay, okay. wanted to know about that also. ठीक है. अर्नव, Paper was okay and good. how was your exam? Sir, the exam was good. थोड़ा आपका वॉइस लो आ रहा है अर्नव. Sir, exam was good. The question were doable. Okay, okay, okay. Okay. So on Rupantar. Yes, sir. I'm also preparing for the next attempt. Actually, I'm May is it May, Okay, 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 okay. and preparing simultaneously on CM1, also preparing simultaneously. Okay, very good. So जिन्होंने भी एग्जाम दिया है आज, right? So results you will get it within a week, right? Now the most important thing जो we have to discuss is this कि आपको अपना एक timeline बनाना पड़ेगा. As you can see that IAI is conducting exams 4 times a year, right? IAI साल में 4 बार एग्जाम ले रहा है. So आपका जो प्लान ऑफ स्टडी होगा ना, that will be like you should not miss any attempt. कोई भी अटेम्प्ट आपको छोड़ना नहीं है. अगर आपके पास टाइम कम है तो आप एक छोटा पेपर कर सकते हैं, राइट? टाइम अगर आपके पास सफिशिएंट है, जैसे मैं आपको एक टाइमलाइन बना के दिखाऊंगा आज, राइट? सो इन दिस पर्टिकुलर way you can plan your papers because that will be very effective and in short span of time like say a 2 year का टाइमलाइन अगर मैं मानूं तो आपका 6 से 7 पेपर क्लियर हो जाएगा. एंड अल्टीमेटली अगर आपका फर्स्ट 7 पेपर्स क्लियर हो जाता है CM, CS एंड CB वाला, देन रिमेनिंग पेपर्स के लिए आपको मैक्स टू मैक्स इट विल टेक अनदर 1.5 year 2 years, राइट? क्योंकि CP एंड SP के लिए यू हैव 2 attempts. So as far as your this CM, CS and CB is concerned, you need to do it as quick as possible because अभी ये जो 4 बार जो साल में एग्जाम हो रहा है ना, आपको इसका एडवांटेज लेना चाहिए, राइट? सो हमारा जो लोग जिन्होंने भी एसेट दिया है, जिनका भी एक वीक में रिजल्ट आ जाएगा, डेफिनेटली अगर आपको लग रहा है कि आपका क्लियर हो जाएगा, देन यू शुड स्टार्ट इमीडिएटली, यू शुड नॉट वेस्ट टाइम. सो प्लान ऑफ एक्शन कुछ ऐसा रहेगा
It is like very simple, and it's doable, right? I just share the screen once with you. Can you see the screen? Yes. Okay. So it is like this. अभी चल रहा है मार्च, राइट? मार्च So I can't 2025. see the screen. I think वो एक बार आई थी और वो स्क्रीन चली गई वापस से. Okay. Can you see now? Yes sir, now I can't. Okay. So अभी आपने एसेट दिया है, राइट? सो प्लान ऑफ एक्शन आपका ये एसेट है. अभी आपके पास टर्म्स क्या क्या आने वाले हैं? यू आर गोइंग टू गेट May 2025, then August 2025, then November 2025, and then Feb 2026. मैं कल अभी इन 4 टर्म्स पे फोकस करता हूं. तो अभी आपको क्या करना है? मे वाले अटेम्प्ट के लिए आप अभी कोर्स एनरोल कराएंगे CM1 एंड CB1, राइट? अगर अभी आप ये एनरोल करवाते हैं मार्च में, राइट, आपका एसेट हो गया, अभी आपने ये 2 पेपर के लिए एनरोल करवाया है, तो करीबन आप समझ लीजिए कि अभी आप CB1 आप मई में दे दीजिए और CM1 आप यहां दे दीजिए. जैसे ही आपका अगस्त का एग्जाम कंप्लीट होगा, अगस्त का एग्जाम कंप्लीट होते ही आप CS1 CB2 ये आपने एनरोल कराया. देन नवंबर में आप CB2 दे दीजिए एंड देन आप CS1 दे दीजिए. मतलब अभी आप दोनों पेपर के लिए पढ़ रहे हैं. मार्च, अप्रैल यू आर स्टडिंग CM1 एज वेल एज CB1 साइमल्टेनियसली. CB1 में आप थोड़ा ज्यादा टाइम दे रहे हैं, राइट? एंड CM1 भी आप साइड बाय साइड पढ़ रहे हैं. जैसे ही मे का एग्जाम हो जाएगा आपका, देन यू विल पिक अप CM1 और ज्यादा टाइम उसमें आप डिवोट करेंगे. देन May 2026 आप CS2 दे सकते हैं, क्योंकि आपका इसमें आर प्रोग्रामिंग पढ़ा हुआ रहेगा. यहां पे आप आर प्रोग्रामिंग पढ़े हुए रहेंगे, तो इट विल बी इजियर फॉर यू टू गिव इन May 2026 CS2. एंड देन अगस्त 2026 में आप CM2 प्लान कर लीजिए. तो आप देख सकते हैं ये इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो नॉन डुएबल है. अभी इसमें आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरा प्रिपरेशन फास्ट है, मैं ज्यादा टाइम डिवोट कर सकता हूं, जैसे CM1 और CB1 के लिए आपको करीबन CM1 के लिए आपको करीबन 400 आवर्स देना पड़ेगा एंड इसके लिए अराउंड 225 आवर्स इज एनफ. वैसे यहां पर भी वही है,
CB2 में थोड़ा कंपैरेटिवली कम देने से भी चलेगा, राइट? एंड देन CS2 is another 400 hours and CM2 is roughly between 350 to 400 hours. बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है, इसमें कुछ साइंस इन्वॉल्व नहीं है। जब तक आप ये टाइमलाइन नहीं बनाएंगे ना, आपको टारगेट, जैसे क्या होता है ना, मैं आई हैव सीन फ्यू स्टूडेंट्स का क्या होता है, एंड दे हैव टेकन द क्लासेस, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक्सटेंशन फैसिलिटी है। सो व्हाट दे डू, दे टेक द क्लासेस एंड उन लोगों ने टारगेट सेट नहीं किया कि उनको कब एग्जाम देना है। देखो, आपका मेन काम है पढ़ना, आप जिस एज में अभी है ना, आपका मेन काम है पढ़ना, राइट? तो अभी आपको मैक्सिमम टाइम एजुकेशन में देना चाहिए। हाँ, देयर आर सम इवेंट्स जो आप इग्नोर नहीं कर सकते, लाइक फैमिली फंक्शंस, साल में एक एनुअल ट्रिप एंड ऑल, बट थोड़ा सा ना आपको सीरियस होना पड़ेगा, राइट? एंड अगर आप इस टाइमलाइन को फॉलो करेंगे तो आप देख सकते हैं आज से ठीक 1.5 साल बाद आपके पोर्टफोलियो में 6 पेपर्स क्लियर होगा। आई एम नॉट जोकिंग। आपके पोर्टफोलियो में 6 पेपर्स क्लियर होगा 100% सक्सेस के साथ। तो आपको ये टाइमलाइन, आज मैं आपसे बात कर रहा हूं ना, जितने जन भी अटेंड कर रहे हैं, बहुत जन ऑनलाइन में इसको रिकॉर्डिंग में देखेंगे, आज से ठीक 1.5 साल बाद मैं आपको उन स्टूडेंट से मिलाऊंगा जिन्होंने ये पाथवे को फॉलो किया था। तो इस पाथवे में कोई 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 मतलब इसमें कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। अभी जैसे मैं अगर मे की बात करूं, सर हमको कितना घंटा पढ़ना पड़ेगा? मार्च है, मई ऑलमोस्ट लास्ट वीक में एग्जाम होता है, तो अगर मैं इसमें गिनती करूं कि मार्च से मई मेरे पास कितना डेज अवेलेबल है, नंबर ऑफ डेज अवेलेबल, आज हो गया करीबन, मार्च का मैं 20 दिन पकड़ता हूं, कंसिडरिंग कि आप कल से स्टार्ट कर रहे हैं, अप्रैल का 30 और मई का 20, मतलब आपके पास 70 दिन है राउंड अबाउट। मैंने आपको पूरा स्टैटिस्टिक्स दिखा देना है, मैं बातों में विश्वास नहीं करता, करनी में ज्यादा विश्वास करता हूं। तो ये जो आप स्टैट्स देख रहे हैं, तो 70 दिन, अगर मेरे को CB1 मई में देना है तो आपके हिसाब से मेरे को 3-3.5 घंटा तो CB1 में देना पड़ेगा, डेली 3 आवर्स, 3 to 3.5 पकड़ लो। और जिनका कॉमर्स बैकग्राउंड है उनको थोड़ा सा कम डिवोट करना से भी चलेगा, राइट? सर डेली मेरे को ये तो देना ही है। अब एक नॉर्मल स्टूडेंट आपके हिसाब से, मैं आपको ये सवाल पूछता हूं, लेट आस्क Anshu Verma has joined recently. Anshu, how was your exam? सर गुड। ओके, तो अंशु मैं आपसे एक सिंपल सा, आप कौन सी ईयर में हैं अभी? सर मैं सेकेंड ईयर में हूँ अभी। सेकेंड ईयर में आप दिन में कितने घंटे पढ़ते हैं? सर 3 to 4 आवर्स, और ज्यादातर मैं नाइट में पढ़ती हूँ। ठीक है, टाइमिंग देखिए, जनरली डे प्रेफरेबल होता है, बट ठीक है आप रात में पढ़ते, 3 to 4 आवर्स आप पढ़ते हैं ना? हाँ यस सर। बट मेरे हिसाब से एक नॉर्मल स्टूडेंट को 5 से 6 घंटा पढ़ाई में देना चाहिए, 5 से 6 घंटा। ओके सर। क्योंकि हम स्टूडेंट है बेटा, आज हम ऑफिस आते हैं, हम मॉर्निंग 9 o'clock को आते हैं, 6 बजे तक हम काम करते हैं, उसके बाद भी हम घंटा 1.5 घंटा और एक्स्ट्रा काम करते हैं। तो मैं अपना लाइफ का एवरी डे का 10 से 11 घंटा मैं अपने ऑफिस वर्क में दे रहा हूं। चलो आप लोग का कॉलेज वगैरह रहता है, 4 घंटा 5 घंटा कॉलेज रहता है, तो आपको भी 10 से 11 घंटा पढ़ाई में देना है। टाइम टेबल आपको बनाना है, आपका जो दिन का दिनचर्या होगा वो आपको बनाना है। मेरा कॉलेज मॉर्निंग में होता था, 6 से 10 में खत्म हो जाता था। सर मेरी भी मॉर्निंग कॉलेज ही है।
मैं सबका देखो कॉलेज टाइमिंग अलग अलग होता है, किसी का 4 घंटे का कॉलेज होता है, किसी का 6 घंटे का कॉलेज होता है, राइट? लोग दूर भी रहते हैं। मैं सिंपल फंडा फॉलो करता था। मेरा गणित एकदम सिंपल था। मेरा 6 बजे कॉलेज था, मतलब मैं 10 बजे सो जाता था, तभी मैं 6 बजे कॉलेज अटेंड कर पाऊंगा, राइट? यस सर। 10 बजे सोता था तो मतलब 9 बजे मैं खाना खाना था, आधा घंटा एंटरटेनमेंट का। इसका मतलब मैं स्कूल कॉलेज से जब आता था 10 बजे 11 बजे, जब भी मैं आता था, आने के बाद मैं 1-1.5 घंटा, मतलब बिटवीन 11 to 1 मैं 2 आवर्स अपना पढ़ लेता था। उसके बाद में लंच करके मैं सो जाता था। फिर शाम को 4 बजे 5 बजे 5:30 बजे जब मर्जी नींद टूटे, उस हिसाब से मैं 3.5-4 घंटा और पढ़ता था। तो अभी आप देखो, मैंने रेस्ट किया, फिर मैंने पढ़ाई की, फिर मैं रेस्ट किया, फिर मैं पढ़ाई किया। तो अल्टीमेटली आई एम एबल टू डिवोट 6 आवर्स ऑफ माई डेली लाइफ टू स्टडी। अब किसी का दिन में कॉलेज है, कोई बोलेगा सर मेरा 9 से 4 बजे तक कॉलेज है, हो सकता है मेरे को जाने में 1 घंटा लगता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप सुबह 1.5 घंटा पढ़ो, कॉलेज चले जाओ। डैशबोर्ड जो हमारा है ना, वो वेबसाइट डैशबोर्ड है, वो आप फोन में भी खोल सकते हैं। आप मेट्रो में जा रहे हो, कहीं पर भी जा रहे हो, आराम से आप फोन में एमसीक्यू सॉल्व करते करते जाओ। या जब आप पढ़ाई कर रहे हो, उसका एक 1 पेजर नोट बना लो, तो क्या आराम से मेट्रो में उसको देखते देखते जा सकते हो। मेरे पास इतना सारा 1 पेजर था, आप सोच भी नहीं सकते हो। पूरा दीवाल, मतलब मेरे, हम लोग के पास तो देखो, हम लोग हमारे घर पे उस समय चूना वाला रंग होता था, उसको अपन डिस्टेम्पर बोलते हैं, बहुत लो क्वालिटी का पेंट। तो दीवार में धब्बे दिखाई देते थे, तो उससे मेरा घर सुंदर भी लगने लगा, धब्बा ढक गया मेरा, राइट? मैं पूरे दीवालों पर वो 1 पेजर चिपका देता था। अब ऐसे बच्चों का रिसेंटली अभी डाउट आया, सर अब तो ओपन बुक नहीं है, फॉर्मूला कैसे याद करेंगे? दरकार ही नहीं है, आप उसको पन्ने में लिखो और पिन कर दो या चिपका दो। आते जाते अगर आपका एक नजर भी उस पर गिर गया ना, फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ 5 सेकेंड 10 सेकेंड्स, और ऐसा अगर 50 दिन हो गया 3-4 महीनों में, बहुत है। तो जिनका 9 to 4 कॉलेज है, 5 कॉलेज है, उनको ऐसे ही करना चाहिए। 5:30 6 o'clock वेकअप, 1-1.5 घंटा पढ़ाई किया, मतलब 7 से 8:30 तक पढ़ाई किया, मतलब 6 से लेके 8 बजे तक, और 8 बजे निकलकर 1 घंटा ट्रैवलिंग से आप कॉलेज पहुंच जाएंगे। कॉलेज में लेक्चर्स अटेंड किया, जहां पे आपको गैप मिला वहां उस गैप्स को यूटिलाइज किया। शाम को आप 5:30 6 बजे घर आए, आधा घंटा आपने रेस्ट किया, फिर 7 से 10 वापस पढ़ाई किया। तो यहां पर भी आप देखिए 5 घंटा आप निकाल पा रहे हैं दिन का। 5 घंटा दिन का निकल रहा है, 8 घंटा सोने का निकल रहा है, कॉलेज का भी निकल रहा है। बेटा यही लाइफ है, तुम्हारा काम ही यही है। हमारा काम जैसे पढ़ाना है, आपका काम पढ़ना है। हर इंसान का लाइफ में एक सर्टेन एज तक गोल होता है, वो गोल से उसको डेविएट नहीं होता, उसका विजन होना चाहिए, राइट? तो मैंने 3.5 घंटा करके मैंने CB1 को दे दिया, और मैं 2 घंटा 2 आवर्स डेली टू CM1, 2 आवर्स डेली टू CM1। तो ऐसा करने से मेरा 70 दिन में करीबन 140 आवर मैं डिवोट कर दूंगा ऑलरेडी CM1 को। आई हैव ऑलरेडी डिवोटेड 140 आवर्स बाय द टाइम आई एम गिविंग माई CB1। और 140% मतलब आप करीबन अराउंड 60-70% आपने वीडियो देख लिया है। मई के बाद आपके पास जून का रहेगा 30 दिन,
जुलाई का रहेगा 31, और अगेन अगस्त में अनदर 15 दिन ही पकड़ लेते वर्स्ट टू वर्स्ट केस। सो यू हैव अराउंड 80 डेज जो भी अप्रोक्सीमेटली। तो 400 घंटे में मैंने 140 ऑलरेडी दे दिया है, बचा 260, बचा 260। कितना दिन है मेरे पास? 80 दिन। रिमेनिंग आवर्स मेरे 260 हैं। 3-4 घंटा भी पढ़ोगे ना, हंस हंस के निकल जाएगा। प्लानिंग, हर एक दिन अहमियत होता है, हर एक दिन इंपॉर्टेंट होता है। यू कैन नॉट जस्ट लेट इट गो लाइक दैट। राइट? तो इस तरीके से आप इसको प्लान कर सकते हैं, ये डुएबल है। इसमें कोई भी अगर कोई भी मेरे को चैलेंज करेगा ना, सर इसमें ये इम्पॉसिबल है, मान ही नहीं सकता मैं। एंड बच्चों ने किया है। साल में जब 4 बार एग्जाम हो रहा है, व्हाई विल आई वेट? मेरे को फटाफट, जिन्होंने अभी अपना एक्चुअल साइंस का करियर स्टार्ट किया है सेकेंड ईयर से, थर्ड ईयर से, उनको तो फटाफट करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले 1-2 साल में उनका प्लेसमेंट होगा। पढ़ना और प्रैक्टिस करना है, पढ़ना प्रैक्टिस करना है, पढ़ना प्रैक्टिस करना है। तो इस तरीके से आप अपना प्लान ऑफ एक्शन बना सकते हैं। आपको कोई भी मेंटरिंग का हेल्प चाहिए, आपको अपना डे प्लान करना हो, स्टडीज प्लान करना हो, you can book mentoring sessions, you can raise tickets, we will get in touch with you again and again. So अभी के लिए आपका प्लान ऐसा ही होना चाहिए। आरती, how was your exam? It was good. Okay, so what I will request to all of you कि start studying and ये प्लान ऑफ एक्शन को आप फॉलो करिए। देखिए, हर चीज का एक सिस्टम होता है। बिना सिस्टम के, जैसे मान लो आज जैसे इंडिया न्यूजीलैंड का मैच है, राइट? अगर आप प्लेयर को इजी सिंगल्स लेने दोगे, प्रेशर बिल्डअप नहीं करोगे, सबको बाउंड्री पे भेज दिया है, सामने कोई सिंगल रोकने के लिए नहीं है, तो क्या है, प्लेयर को टाइम मिल जाएगा सेट होने के लिए। वो सिंगल्स चुराते चुराते भी वो कर सकता है। आज विराट कोहली अपना 70% रन खाली सिंगल्स में लेता है, फिर भी वो 90-100 का स्ट्राइक रेट मेंटेन कर लेता है। तो आपको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, जिसकी आप एक प्लेयर को आउट कर सके। तो क्या करेगा, आपको कैचिंग रखना पड़ेगा, रन्स रोकने के लिए प्लेयर को सामने बुलाने पड़ेंगे। तो क्या है, वो चौका मारने का कोशिश करेगा, चौका मारने का कोशिश करेगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आउट उसका बढ़ जाएगा। उन्होंने एक प्लान बनाया ना। कोई भी काम बिना प्लानिंग के नहीं होता है। आपके घर पे भी कोई फंक्शन होता है या किसी की शादी है, तो एक प्रॉपर बजट बनता है, उसका एक प्लान होता है। वैसे बेटा स्टडीज में भी एक प्लान होता है। अगर आपके पास स्टडी प्लान नहीं है ना, आप आज पढ़ाई शुरू करो चाहे 4 साल बाद शुरू करो, बिना प्लान के आप उसको एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास टाइमलाइन ना हो तो आप कोई भी चीज को समय के पहले कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। मेरे को मालूम है, मेरा आज से 3 साल 4 साल बाद मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा, 4 साल बाद मेरे को नौकरी चाहिए मेरे हाथ पे, मेरे साथ मेरा बाकी फेलो मेंबर्स लोग भी जाएगा जॉब के लिए, उनका 8 पेपर 9 पेपर क्लियर है और मेरा 1 या 2 पेपर ही क्लियर है। किसको पहले प्रेफरेंस मिलेगा, आप बताइए? इंडस्ट्री वांट्स द बेस्ट पर्सन टू बी हायर्ड। मैंने इसमें आपको रश करने नहीं बोला, भागने नहीं बोला है, तरीके से आपका प्लानिंग किया है। इसमें कोई प्रेशर भी बिल्डअप नहीं होगा, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। गुल्लक में जब पैसा जमाते थे बचपन में, राइट, रोज 1 रुपया 2 रुपया करके डालते थे, किस लिए? कि जब वो फोड़ेंगे उसमें से 500-600 रुपया निकलेगा, कुछ अच्छा सा एक चीज खरीदेंगे। ये वही चीज है। हर दिन आप 3 घंटा 4 घंटा करके दीजिए,
CB1 को, 1.5 से 2 घंटा दीजिए आप CM1 को। इससे क्या होगा, आने वाला 5 महीना में आपका 2 पेपर क्लियर हो जाएगा। सेम प्लान ऑफ एक्शन, अगेन आपका 2 पेपर और क्लियर हो जाएगा, इस तरीके से, राइट। आपका क्या डाउट है आप लोग पूछ सकते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम फेस हुआ वाइल स्टडिंग, कोर्स के बारे में और इनसाइट्स किसी को जानना हो। So I had a question. हम्म So right now I'm in my second year and I have my NSEMS exams अभी अप्रैल में, like हम्म पूरे अप्रैल मेरे एग्जाम्स चलेंगे. So I don't think it will be possible for me to like write CM1 and CB1 both in my May attempt. And as you also mentioned कि आप CB1 के लिए prepare करो, whoever is wanting to prepare in May and August attempt में CM1 के लिए. So that is something I was looking for. But right now as today is March 9th and March में हमारे पास 20 days बाकी है. एंड अप्रैल 22 को मेरे एग्जाम्स खत्म हो रहे हैं और उसके बाद आई थिंक रफली 20-25 डेज से भी कम बचेंगे. तो डू यू थिंक आई कैन स्टिल प्रिपेयर फॉर CB1 इन दिस यस, टाइम व्हाई फ्रेम? नॉट, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। मैं आपको एक सिंपल सा चीज और बताता हूँ। ओके सर. ये तो मैंने इक्वेशन उन लोगों के लिए बताया जिनके पास बहुत सारा काम है, जिनको कॉलेज जाना है, राइट। अभी आपके पास, मैं अगर आपका सर प्लानिंग करके, अभी तो मेरी आई थिंक टिल द 21st ऑफ मार्च मेरा कॉलेज है एंड देन आई हैव अ वीक्स लीव बिफोर माय एग्जाम्स, कॉलेज एग्जाम से जो भी पहले. है, आपके आपने एंड बोला ना आपके मार्च का 20 दिन है और उधर में आपके पास 25 दिन है, यस यस यस. ठीक है। और मैं आपको बताता हूं, अगर एक स्टूडेंट रेगुलरली कॉलेज अटेंड कर रहा है एंड उसके बावजूद अगर उसको घर पे कॉलेज का पढ़ाई के लिए अगर टाइम निकालना पड़े, जैसे हम लोग क्या करते थे, हमारा सेंट जेवियर्स कॉलेज था कोलकाता का, भाई अगर मेरा मन नहीं भी करे तो मेरे को जाना पड़ता था कॉलेज। अगर मैं कॉलेज में 4 घंटा बैठा हूं, किस लिए बैठा हूं, मैं कॉलेज गया हूं घर से इतना दूर, मेरा ट्रांसपोर्टेशन लगा, मैं मन मार के गया, सुबह उठने में अगर किसी को प्रॉब्लम है, मैं वहां जाके अगर क्लास डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं करूं तो क्या फायदा। कॉलेज का पढ़ाई आप लोगों को कॉलेज में ही कंप्लीट कर लेना चाहिए। जो प्रोफेसर्स लेक्चर्स कराते हैं उनको अटेंड करिए। कॉलेज का पढ़ाई अगर आप कॉलेज में कंप्लीट कर लेंगे ना, तो आप जो कह रहे हैं कि मेरा पूरा, आपको मालूम है मेरा 21 अप्रैल को कॉलेज एग्जाम है, 22 अप्रैल को मेरा सीए का एग्जाम था, 24 को मेरा कॉलेज एग्जाम, 26 को मेरा सीए का एग्जाम, ऐसे था। मैंने मेरी कॉलेज की पढ़ाई कॉलेज में कर ली थी, खाली मेरे को ब्रशअप के लिए दिन में 1 घंटा करके निकालना पड़ता था, बाकी मैक्सिमम टाइम मैं अपने प्रोफेशनल कोर्स को देता था। तो आप लोगों को भी यही करना है। आपको जब आपका कॉलेज एग्जाम चल रहा है वो एट स्ट्रेच नहीं होगा, उसमें गैप्स होंगे। चलो कॉलेज एग्जाम के 1 दिन पहले मैंने उस पेपर का पढ़ लिया, लेकिन उसके पहले जो 2 दिन और गैप है उसमें मैं 2-3 घंटा करके तो निकाल सकता हूं। तो इफेक्टिवली अगर आप देखेंगे, आपके पास 25 दिन यहां का, 25 दिन वहां का, 50 दिन है। 50 दिन मतलब आपका 4.5 घंटा में हो जाएगा, क्योंकि वंस यू आर डन विथ योर कॉलेज यू हैड नथिंग टू डू। और सबसे बेस्ट पार्ट मैं आपको बताऊं, सबसे बेस्ट पार्ट आपके एग्जामिनेशन का, द एग्जामिनेशन का सबसे बेस्ट पार्ट वो एमसीक्यू है। आप पढ़ो, प्रैक्टिस करो। सब्जेक्ट में एक प्रेशर होता है, लेकिन एमसीक्यू में मेरे को प्रेशर फील नहीं होता, क्योंकि उसमें खाली कॉन्सेप्ट करना है मेरे को अच्छे से और ऑटोमेटिकली मैं उसको सॉल्व कर पाऊंगा क्वेश्चन को। तो ऐसा नहीं कि डुएबल नहीं है। मैंने क्या बोला, टाइम देखो। आप अगर मान लो मेरे पास 20 दिन बचा, अब कोई मेरे को बोलता सर 20 दिन में CB1 हो सकता है, हिसाब क्या बता रहा है, 225 डिवाइडेड बाय 20,
10 घंटा करके पढ़ना। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। पढ़ने वाले 16-16, 17-17 घंटा भी पढ़ते हैं, बट प्रैक्टिकली दिन में 10 घंटा पढ़ना पॉसिबल नहीं है। 40 दिन में 200 घंटा देना संभव है, 50 दिन में 200 घंटा देना संभव है, वही 40 दिन में 400 घंटा देना संभव नहीं, क्योंकि पर डे 10 आ जा रहा है। एनीथिंग विच इज पर डे 7 आवर्स 6 आवर्स से ज्यादा वो पेपर पे डुएबल लगता है, बट वो प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन में प्रॉब्लम आता है। उसमें आपको ऐसा लगेगा आप चीज हड़बड़ी में कर रहे हैं, हड़बड़ी में नहीं करना है। यहां पे मैंने कोई भी चीज आपको हड़बड़ी में नहीं बताई है। खाली एग्जाम में बॉर्डर लाइन क्रॉस करना ऑब्जेक्टिव नहीं है। आगे जाके जो नौकरी मिलेगी इसी के बेसिस पे मिलेगा। तो आपका फाउंडेशन हैज टू बी वेरी स्ट्रांग, स्पेसिफिकली CM1, CS1, CB1, 2। ये 4 पेपर ऐसे हैं जिसका आपका फाउंडेशन बनाएगा वो। ये फाउंडेशन आपका सुपर स्ट्रांग होना चाहिए, समझ रहे हैं? तो आप कर सकते हो। कोई भी चीज को करने के पहले हार नहीं मानना चाहिए, मेरा सिंपल सा फंडा है। मैं जब तक उसको करूंगा नहीं, मैं जब तक उस पर उतरूंगा नहीं, आई हैव टू गेट माई हैंड इनटू इट, आई नीड टू पुट माई स्किन इनटू इट, आई नीड टू। जैसे फील्डर फील्डिंग करता है, उसको लगता है ये इम्पॉसिबल कैच है। अभी ग्लेन फिलिप ने जो कैच लिया पिछले 2 मैचेस में, कुछ सोच सकता था? बॉल बगल से जा रही है, मैं कूदने का पकड़ने का ट्राई नहीं करूंगा तो मेरे को मालूम कैसे चलेगा वो डुएबल है कि नॉट डुएबल है? मैदान में तो उतरो। और मैंने जो आपका प्लान ऑफ एक्शन बताया है, ये पिछले 15 साल से यही प्लान ऑफ एक्शन हमने हमारे स्टूडेंट्स को बताया है। बताइए और क्या डाउट है? Anyone wants So to ask as anything? हाँ, as I'm in बोलो। my second year in approaching for CB1 and CM1 in August, and like I'll be doing a 3-year course. I'm pursuing BCom honors in my college, and I had a question regarding internships and jobs. Like, क्या मुझे internships करनी चाहिए at this point अभी of कुछ time? नहीं होगा बेटा, तुमको कॉलेज के पहले एक्चुअल फील्ड में नहीं मिलेगा। Okay, sir. Also, like, sir, approaching my third year, Abhi. So, third year, mein, like, should I be looking at applying to placements that come to my college, or should I just focus on my actuaries and then eventually after that? पहले तुम पेपर क्लियर करो, स्टेप बाय स्टेप होगा। Okay. Because even if you sit for placement and you don't have any papers in your bank, then no one will entertain you. So first you need to have papers cleared in your bank. अभी देखो, Okay, sir. गवर्नमेंट जब प्लान बनाता है ना, बजट जब आता है, 5 साल का बजट आता है, सरकार बनती है और 5 साल का प्लान बताता है। लेकिन हर साल एक एनुअल बजट भी आता है, उस एनुअल बजट के लिए छोटा छोटा बजट बनाया जाता है। तो अभी आपका टारगेट मई है, मई में मेरे को 3-3.5 घंटा करके मई तक मेरे को 3-3.5 घंटा CB1 पढ़ना है, 1.5 से 2 घंटा करके मेरे को CM1 पढ़ना है। ये मेरा टारगेट है। मेरे को ये 2 पेपर साथ में पढ़ना है, CB1 में ज्यादा देना है, CM1 में कम देना है। मई खत्म हो जाएगा, फिर मैं अगस्त के लिए सोचूंगा। स्टेप बाय स्टेप, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। एक एक Okay, कदम sir. आपको रखना है। और कोई? सर मुझे एक डाउट है। हम्म। तो सर अभी मई 2025 में मैं एसेट दूंगा, तो सर करंटली क्या मुझे CM1 के लिए क्लास एनरोल करना चाहिए या फिर एसेट के बाद? 100%, क्योंकि एसेट के लिए उतना पढ़ना ही नहीं पड़ता है। अगर आपका 11-12 में प्योर मैथ्स था यस सर, मैं तो कॉमर्स। यस। हाँ, तो एसेट के लिए आपको उतना पढ़ना नहीं पड़ेगा। अभी आपको साइड बाय साइड करेंगे ना, तो आप अगस्त में CM1 दे पाएंगे। यस सर। जो भी मई में एसेट दे रहा है उनके लिए बेटर है कि उनको CM1 भी अभी स्टार्ट कर देना चाहिए। तो अगर आप CM1 अभी स्टार्ट कर देंगे तो क्या होगा, 3-4 घंटा एसेट पढ़ रहे हैं, 2 घंटा करके CM1 पढ़ रहे हैं। एसेट आपका एनी प्योर मैथ स्टूडेंट्स विल बी एबल टू क्रैक एसेट। 99.99 परसेंटाइल केसेस में हमारे यहाँ पे यही दिखा गया है।
अगर कोई प्योर मैथ्स का स्टूडेंट है, वो बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट निकला, प्रैक्टिस नहीं करेगा, पास्ट ईयर पेपर सॉल्व नहीं तो वो अटकेगा। जनरली कोई अटकता नहीं है सेट में या एंट्रेंस टेस्ट में। जिसका प्योर मैथ्स है उस केस में मैं बता रहा हूं, जो नॉन मैथ्स स्टूडेंट है उनको मैथ्स करने में थोड़ा टाइम लगता है, बट अगर कोई प्योर मैथ्स स्टूडेंट तो वो कभी एसेट में अटकता नहीं है। और हमारे यहाँ पे ऐसा है नहीं, आप कोर्स को कैरी फॉरवर्ड भी करा सकते हैं। तो इट्स लाइक दिस कि आप अभी एसेट पढ़िए, साथ साथ CM1 का कोर्स भी चालू करिए, जिसे आप 1.5 से 2 घंटा CM1 में दे पाएंगे। और फिर आप एसेट देखो, एक आपका जस्ट टू गिव मेन पेपर्स आपको एसेट देना पड़े, क्योंकि IFOA में तो एसेट नहीं है। आज चीज को समझो, Yes, इन्होंने sir. अपना एक वो निकाल रखा है एंट्रेंस एग्जामिनेशन, बट एक्चुअल में उसकी कोई वैल्यू नहीं है ना, क्योंकि Yes. IFOA तो मेन पेपर का एग्जाम सीधा मेन पेपर बोलता है देने को, वो तो बोलता ही नहीं एंट्रेंस एग्जाम। तो आप साथ में ये भी शुरू करिए। Okay, sir. और अभी रिसेंटली नया बैचेस शुरू हो रहा है, सो यू कैन स्टार्ट एज क्विकली एज पॉसिबल। Yes, sure. एनीवन एल्स? चलिए, so it was nice interacting with all of you. If you want, we can have more sessions like this. When you face problem, you raise ticket, you book mentoring sessions, right? If you are residing in Kolkata, if you are residing in Delhi, if you are residing in Mumbai, we have opened offline centers. Mentors are there. दिल्ली का स्पेसिफिकली मैं बता रहा हूं, अभी हमने अपना टाइम रिवाइज कर दिया है। 12 बजे से लेके रात को 8 बजे तक हमारा दिल्ली सेंटर में मेंटर्स आर अवेलेबल। कोलकाता सेंटर में मॉर्निंग 9 o'clock से लेके इवनिंग 6 o'clock तक मेंटर्स आर अवेलेबल। मुंबई वी हैव जस्ट ओपन लास्ट वीक, सो टाइमिंग्स आर येट टू फाइनलाइज, बट मुंबई का भी मोस्ट प्रोबेबली वैसा ही रहने वाला है, मतलब 11 to 7 ऐसा ही रहेगा, राइट? सो आप हमारे फिजिकल सेंटर्स में आइए, आप बैठ के पढ़ सकते हैं, आप हाथों हाथ अपना मेंटर्स के साथ डाउट्स पूछ सकते हैं, और काफी सारा ऑफलाइन क्लासेस भी हम लोग रिसेंटली लॉन्च कर रहे हैं, राइट? एंड ऑनलाइन वाला क्लास आप लोग मिस मत किया कीजिए, स्पेसिफिकली जो CM CS CB पेपर्स लेते हैं, क्योंकि एसेट की क्लास तो हमारी होती, आप जैसे देखें इवनिंग में होती थी, वैसे हमारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स भी काफी सारे लोग हमारे इंडस्ट्री से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनके पास सैटरडे संडे को फ्री टाइम होता है, so they take classes, they share practical insights into the field subject, so काफी वो फायदा होता है स्टूडेंट्स को, राइट? एंड सर लोग तो क्लास लेते ही हैं, राइट? सो द प्लान इज वेरी सेट। कमिंग टू CB1, अगर किसी को मई में देना है इमीडिएटली ज्वाइन कर ले, एंड CM1 भी साइमल्टेनियसली पढ़ना है। काफी सारा क्लासेस मैं करवाऊंगा, बहुत सारा MCQ क्लासेस भी होगा, कुछ आपको रिकॉर्डेड लाइव मिला के आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, राइट? सो हाँ बोलिए आरती। सर CB2 का बैच भी अभी लॉन्च हुआ है क्या कोई? हाँ, सभी आपको CB जो कॉम्बिनेशन करना है, आपको CM1 के साथ CB2 लेना है वो ले लीजिए। जनरली CM1 के साथ सब अकाउंटिंग लेता है, एंड CS1 के साथ सब CB2 लेता है, इकोनॉमिक्स लेता है, तो आपको जैसा कॉम्बिनेशन करना है आप कर सकते हो, उसमें इट हार्डली मैटर्स, दैट डिपेंड्स। बैचेस कब से स्टार्ट है, मींस एग्जाम्स के जो आपने मई के बताए? मई का बेटा 1-2 क्लास हो चुका है, तो उसका आपको बैकअप करना पड़ेगा, एंड इट्स ब्लेंड रिकॉर्डेड प्लस लाइव। वो जब आप एनरोल कराएंगे ना तो टीम आपको हेल्प कर देगा, ओके ठीक है ना? तो इस तरीके से आप एनरोल कराइए, एनरोल कराने के बाद आपको ऑटोमेटिकली चीजें मिल जाएंगी कैसे हो रही है। सर, एक क्वेश्चन और था। हाँ बेटा बोलो। हमारे 13 पेपर्स है ना, हम्म, तो क्या हम कोई भी पेपर्स कभी भी दे सकते हैं या फिर स्टेप बाय स्टेप सारे पेपर्स देने रहते हैं? ये प्लान ऑफ एक्शन है बेटा, इसी पैटर्न में लोग देते हैं। CM1 CB1 साथ में, देन CB2 CS1 साथ में, फिर आप पहले CM2 भी दे सकते हैं, CS2 बाद में दे सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे CS1 पढ़ रहे हैं बोल के मैंने आपको यहाँ पे CS2 लिखाया है। इसके बाद आप CP सीरीज देंगे, उसके बाद SP सीरीज देंगे। उन्होंने जब कोई चार्ट बनाया तो हम लोग को भी वही फॉलो करना चाहिए। ओके सर। जैसे आगे आप जाएंगे तो आप CM2 के साथ आप CP2 दे सकते हैं, राइट? इस तरीके से आप कॉम्बिनेशन बन सकता है, काफी सारा कॉम्बिनेशन बन सकता है,
बट अभी उतना सोचो मत, पहला टारगेट है 6 पेपर निकालना, उसके बाद अपन बाकी के बारे में सोचेंगे। Good to go? Okay, sir. Thank you. Okay. So here we call it a day, right? It was nice interacting with all of you, and wish you all the best for your future papers and result. Thank you so much. Thank you, sir.